हेलो एसएओ एस्पिरेंट्स एंड एओ एस्पिरेंट्स इन जीएसआई गाइज। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम लोग बात करने जा रहे हैं कि इंग्लिश जो आपके सब्जेक्ट हैं, आपके सिलेबस में है, वो टोटल 20 क्वेश्चंस आता है, उसमें 17 to 18 कैसे अटेम्प्ट करे गाइज। नाउ सी वन फैक्ट्स आई वांट टू पुट बिफोर यू। द इंग्लिश इज द मोस्ट scoring subjects, but unfortunately English is the most ignored subject by the aspirants. Why I speak like that guys? Now see, आप खुद 1 मिनट के लिए अपने बारे में सोचे, बिकॉज यू आर गोइंग टू अपियर इन एग्जाम। आप ऐसा सोचते होंगे जो यस वी नो इंग्लिश राइट and we will score good will score good in exam, but this doesn't work because many aspirants when they come out from the examination hall and we check the answers, you know, poorly they score very poor in English, somewhere 10 to 12 out of 20। एंड गाइज यहाँ आप 7 to 8 मार्क्स आप पीछे हैं अपने कॉम्पिटिटर से, राइट? सो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट टू, you know, from beginning you have to give your attention, your focus on English, right? Guys, those who are watching for the first time, I'll request every one of you to join Telegram group. The link is in the description box, because every day we are putting the 10 important questions for SAO and different exams like administrative officers in GSI, senior administrative officers grade 2 in DRDO. So let's start guys. Now see, let us talk about first syllabus. आप अपने syllabus को बिल्कुल ध्यान से देखें, right? We are going to talk about English and it's going to very important. Try to watch till end and try to implement the proven strategy what we are going to discuss today, because we have guided so many students and they scored very good. Even some, if you believe, 19 out of 20 some of our aspirants got this, right? So it becomes very necessary and important for you to follow all the rules, all the method what we are going to tell today. Now see, if we see the syllabus, ये आपके syllabus का पार्ट है गाइस। जनरल इंग्लिश लिखा है और इसके आगे डिस्क्रिप्शन है, टू टेस्ट द कैंडिडेट्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड वर्क मैन लाइक यूज ऑफ वर्ड्स। नाउ सी, ट्राई टू अंडरस्टैंड द सिलेबस जो आपके सिलेबस में है। ये आपसे बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं पूछेगा इंग्लिश से, इसका मतलब यही हुआ। और जो सामान्य व्यक्ति मींस बिल्कुल जनरल, जैसे इफ यू आर हिंदी स्पीकर, यू आर तमिल स्पीकर, यू आर तमिल नेटिव है या कन्नड़, वॉट एवर लैंग्वेज यू स्पीक, राइट? जो सामान्य व्यक्ति समझ में आता है वैसे ही इंग्लिश के बारे में कहा जाता है, जो आपसे वही चीज करेगा। If it is so simple, then why you people are not scoring high in this? The reason is that guys, you don't understand the science of this English. Why I say like that? Because now see, आपको बहुत छोटे छोटे, when they ask common error, right? तो ये बहुत बड़ा गलती नहीं देगा आपसे, बिल्कुल प्रीपोजिशन में दे देगा, एडजेक्टिव में दे देगा, क्वेश्चन टैग या डायरेक्ट इनडायरेक्ट में दे देगा। तो देर आर सिंपल रूल्स, हार्डली आपको समवेयर 100 to 150 और maximum 200, if you know the grammar rule, easily you can attempt correctly all the questions, right? तो ये इतना सिंपल है, but the problem is you people are not concentrating this, right? तो आज हम लोग इसी पे बात करेंगे, try to implement this and this is for your welfare only, right? Now see, इससे पहले जो, यदि यूपीएससी ने ऐसे लिखा है तो क्या ये यूपीएससी इंप्लीमेंट करती है? लेट अस सी द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वी हैव, एंड व्हाई वी have made this lecture guys, we have analyzed almost all questions paper by of UPSC और तब जाके हम लोगों ने ये कंक्लूजन पाया है। now see, this is your 2015 का जो सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स का एग्जाम हुआ था। Just you see the questions here, will not answer the question here, we are not going to discuss the question, just I want to show you the example how simple they are asking। ये कह रहा है, जो एक सेंटेंस दिया हुआ है इसमें आपको कह रहा है कहाँ एरर है, राइट? इट इज सो सिंपल, it is so simple if you have basic grammar knowledge, basic phrasal verbs knowledge, basic words knowledge, easily you can solve, right? Next, these just you read the questions, why I show you, just to make you understand कि किस तरह से ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है गाइज, एंड समवेयर ये आपका स्कोर बहुत ही अच्छा कर देता है। नाउ हियर दे आर आस्किंग व्हाट टाइप ऑफ अ बॉय इज ही, इसमें कहाँ एरर है?
आपको ये बताना है। द क्वालिटी ऑफ द कैमरा इज इंफीरियर देन द वन यू हैव। इट इज सो सिंपल, इफ यू हैव बेसिक ग्रामर यू कैन इजिली अटेम्प्ट दिस। इवन इफ यू टॉक अबाउट वर्ड, ये आपसे बिल्कुल स्लगिश, कौन नहीं जानता होगा, राइट? इफ यू से ऑब्सोलीट, कौन नहीं जानता होगा? इनइक्विजिटिव, कौन नहीं जानता होगा? सो दे आर आस्किंग सो सिंपल क्वेश्चंस। या तो इसका वो एंटो पूछ लेगा, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, या फिर कहीं ना कहीं ये आपसे पूछ लेगा जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या है, या फिर इडियम्स एंड फ्रेजेस पूछ लेगा। तो इट इज सो सिंपल। देन यू मस्ट टारगेट गाइस, आउट ऑफ जो 18 तो आपको 20 में टारगेट करना ही चाहिए। नाउ सी, इफ यू आर स्कोरिंग 18 हियर आउट ऑफ, यदि आप 70 टू आउट ऑफ 120, आप कहीं ना कहीं 70 टू 75 सही कर रहे हैं, यू आर इन। और 20% आपको सिर्फ इंग्लिश से, 20 ऑलमोस्ट, हाँ आप ये कह सकते हैं 15-16% यू कैन स्कोर इंग्लिश से ही कर सकते हैं। यदि आप 75 आपका टारगेट है और उसमें 18 क्वेश्चंस कहीं ना कहीं आप इंग्लिश से कर रहे हैं सही, मींस ऑफ कोर्स इट इज ह्यूज। आई से अभी आपको पता नहीं चलेगा, व्हेन योर नेम वुड बी इन लिस्ट और आपकी इंग्लिश अच्छी गई होगी आपके एग्जाम में, तब आपको पता चलेगा व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश। दैट इज व्हाई आई suggest, I request, I recommend every one of you to focus on English. So now let us talk about what are the strategy you can follow. Guys, we know that you people are working, right? You people are working, you have time constraint, you have the time, आपके लिए it is very important, right? तो आपको it is being suggested, don't spend more than 30 minutes, maximum 40 minutes। जिसका जो इंग्लिश कमजोर है 40 मिनट्स, और जो अपने आप को एक्सपर्ट मानते हैं बट कॉमन एरर बहुत ज्यादा होता है, उसके लिए 30 मिनट्स है गाइज, नॉट मोर देन दैट। और ये नीडेड भी नहीं है। हियर वी आर नॉट गोइंग टू रिकमेंड यू एनी बुक। नो सी, इंग्लिश इज अगेन अ लैंग्वेज। लैंग्वेज को आप रूल से नहीं सीख सकते हैं। इन द सेंस व्हाट आई मीन टू से दैट इफ यू मग अप 1000 ग्रामर रूल, और जब इंप्लीमेंटेशन की बारी आएगी आप गलत कर जाएंगे। दिस इज द फैक्ट, राइट? सो आई विल नॉट रिकमेंड हियर। ऑफ कोर्स यदि आप रेगुलर स्टूडेंट होते, बहुत बेसिक्स आपको पता नहीं होता, एज यू पीपल हैव क्रैक द एग्जाम, आई कंसीडर एंड आई होप कि आप इंग्लिश के बारे में बेसिक क्लियर है। सो हियर वी आर नॉट गोइंग टू रिकमेंड यू एनी बुक, राइट? जस्ट सम 30 minutes, out of 4 hours, if you are devoting, if you are devoting 5 hours, 30 minutes आपको इंग्लिश में करना है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं है गाइज। तो आपको करना क्या है नाउ इन 30 मिनट्स में? आप कैसे अपने टाइम को, नो सी, दिस इज वेरी सिंपल। बिकॉज जो जो एसएओ का लेवल है गाइज, आई विल से कि इट इज नॉट वेरी हायर देन द एसएससी सीजीएल से, बहुत ज्यादा हाई नहीं है। यस, यूपीएससी एनडीए का एग्जाम लेती है, सीडीएस का एग्जाम लेती है, इवन सी सैट का लेती है, दैट्स द डिफरेंट थिंग, राइट? बट इफ यू आर द एस्पिरेंट्स ऑफ दिस काइंड ऑफ एग्जाम, जो कि ये जिसके बारे में हम अभी सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर या एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स, तो ये गाइज, इफ यू हैव द गुड कमांड ओवर एसएससी टाइप ऑफ क्वेश्चन इन इंग्लिश, आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली इन इंग्लिश, नॉट हिस्ट्री एंड पॉलिटी, देयर द गेम इज डिफरेंट, राइट? हियर वी आर टॉकिंग अबाउट इंग्लिश। यदि आप इसको कमांड कर लेते हैं तो यू विल बी इन द पोजिशन टू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस, राइट? एंड दिस इज आवर एक्सपीरियंस। ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा, वी हैव मैच्ड द थिंग्स एंड देन वी केम टू द कंक्लूजन एंड देन वी आर पुटिंग बिफोर यू, राइट? सो आपको करना क्या है, यू नीड टू टेक, आप इंटरनेट पे इजिली अवेलेबल है गाइस, आप एसएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर निकाले। दिस इज फॉर बोथ एक्सपर्ट एंड जो अपने आप को पुअर मानते हैं, दोनों के लिए है। आपको कुछ नहीं करना है, ट्राई टू सॉल्व 10 to 15 क्वेश्चंस, नॉट मोर देन दैट। अगेन आई से 10 to 15 क्वेश्चंस, इट विल हार्डली टेक 5 to 10 मिनट्स। आपको 10 से 15 क्वेश्चंस ग्रामर, जो कॉमन एरर है गाइज, उसको सॉल्व करना है। बिकॉज अभी तक जो कंक्लूजन हमने देखा है आपके एग्जाम में, कॉमन एरर, राइट, देन फ्रेजल वर्ब, देन एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यही पूछता है। इससे ज्यादा ये कॉम्प्रीहेंशन नहीं पूछता है आपके एग्जाम में। ये 4-5 चीजें, तो कहने का मतलब 2 ही पोर्शन हुआ, ग्रामर एंड वर्ड, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो अभी हम लोग ग्रामर के बारे में बात करते हैं। व्हाट यू नीड टू डू, एज आई टोल्ड, यू नीड टू टेक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ऑफ एसएससी ग्रेजुएट लेवल का, और ग्रेजुएट लेवल में जो भी एग्जाम होता होगा, राइट, वहां से लेना है। आपको 10 से 15 क्वेश्चंस बिल्कुल तसल्ली के साथ बैठकर बनाना है, राइट? एंड उसके बाद आंसर वहां दिया हुआ है, एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, इजिली अवेलेबल है। इफ इट इज नॉट, यू कैन बाई, हार्डली ये 50-60 रुपीज में कहीं भी मिल जाएगा। अब उसके बाद क्या करना है, इवन इफ यू डिड करेक्ट,
तब भी आपको क्यों आपने करेक्ट किया है, बिकॉज क्या होता है जो उस समय आप तुक्का लगा के सही कर दोगे, बट आप ये रूल आपको पता नहीं है जो क्यों आपने सही किया, और एग्जाम में उसी टाइप का क्वेश्चन आएगा, यू मे कमिट मिस्टेक। सो व्हाट यू नीड टू डू, इवन इफ यू स्कोर 5 आउट ऑफ 10 और 0 आउट ऑफ 10, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। माई सोल पर्पस हेयर टू टेल यू कि आपको ग्रामर का जो आपने सॉल्व किया है ना, यू नीड टू मेक नोट्स आउट ऑफ दैट, राइट। 10 रूल, 10 मैं कुछ ज्यादा ही बोल दिया, वो तो बहुत ही ज्यादा हो जाएगा। ट्राई टू मेक एटलीस्ट 5 to 7 रूल्स एवरी डे, राइट। ये आपका 15 मिनट का इन्वेस्टमेंट है, नॉट मोर देन दैट। यू कैन सॉल्व, वहीं से एंटोनिम, सिनोनिम्स, एडियम्स एंड फ्रेजेस दिया हुआ है। इट इज इजी। आपके आपके पास ऑफ कोर्स यू विल हैव लॉट ऑफ वर्ड्स, तो आप वहां सॉल्व कर सकते हैं अपने आप को, यू इवेल्युएट करने के लिए, राइट। तो यहां से आपने क्या किया, ग्रामर का 10 से 15 क्वेश्चन निकाला और 5 से 7 नोट्स आपने बना लिया, क्यों आपने सही किया है, राइट। नाउ नेक्स्ट क्या करना है गाइज, इफ नाउ यू हैव द ग्रामर रूल, ये एवरीडे की कहानी है, दिस इज नॉट वन डे, दिस इज नॉट कि आपने एक सिटिंग में एक ग्रामर का बुक खत्म कर दिया और फिर एक महीना छोड़ दिया, नॉट नॉट लाइक दैट, एवरी डे दिस इज, यू हैव टू बी कांस्टेंट इन दैट, राइट। अब once you have the compile of the rules, at least आप 100 250 अपने आपके पास ये आ गया रूल्स। नाउ यू हैव गॉन थ्रू द एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस। आपको क्या करना है, यू हैव द शॉर्ट नोट्स, एक बिल्कुल एक छोटा सा नोटबुक आता है, उसमें आप बनाएं। इफ यू हैव इवन अ डे 5 मिनट्स, आप कभी आपके पास टाइम है, जस्ट यू डोंट नीड टू बी फोकस्ड, एक बार आप एक झलक देख ले, जस्ट गिव अ ग्लांस, और ये रिवाइज होता जाएगा एवरी डे, राइट। अब उसके बाद क्या करना है, जो मैंने आपको बताया था 15 मिनट पीछे आपने इन्वेस्ट किया, और 15 मिनट क्या करना है गाइज, इट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। आपको एवरी डे यू नीड टू रीड न्यूज़पेपर, और न्यूज़पेपर में क्या करना है, कुछ नहीं करना है। द हिंदू का मैं एग्जांपल ले रहा हूं, यू कैन टेक एनी न्यूज़पेपर। हिंदू का जो एडिटोरियल आता है, उसमें लेफ्ट साइड में, अगेन ऐसे सपोज दिस इज द न्यूज़पेपर, तो आप यहां देखोगे जो ये एडिटोरियल है, राइट। तो लेफ्ट साइड में दो छोटे छोटे आर्टिकल्स होते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब जब आप उसको पढ़ोगे तो यू विल कम अक्रॉस ऑल दोज वर्ड्स जो आपने एसएससी वाले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर से आपने वर्ड को सॉल्व किया है, एंड समटाइम्स यू विल कम अक्रॉस द ग्रामर रूल आल्सो, राइट। तो यहां आपका क्या होगा, यू विल यू रिवाइज द थिंग्स, राइट। and if you are reading unconsciously, you are learning the sentence structure, right। और आपको पता चलेगा जो इफ यू इवन इफ यू डोंट नो द रूल, आप बिल्कुल सही टिक कर देंगे। सो दिस इज फॉर दैट। यहाँ इंग्लिश के लिए कोई ग्रामर का बुक आई विल नॉट रिकमेंड, नो कुछ नहीं, बस दो तरीका है जहाँ, एंड आउट ऑफ, अब जब आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, यू हैव टू राइट ओनली 5 वर्ड्स डेली, और उसका मीनिंग आप लिख ले। होगा क्या, इफ आई कैन गिव यू गारंटी हियर, इफ यू रीड 15 days, उसके बाद आपको इफ यू हैव 75 वर्ड्स और 100 वर्ड्स, लेट्स कंसीडर आपने 20 डेज पढ़ा, अब ये वर्ड रिपीट होता जाएगा, इवन आपको रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। ये हिंदू हिंदू आर्टिकल की यही खासियत है, जो ऑफ कोर्स यू विल हैव गुड वर्ड, ऑलमोस्ट जो भी कंपटीशन एग्जाम होता है, इस तरह के वर्ड यहाँ आपको मिल जाएंगे, एडियम्स फ्रेजेस बिल्कुल मिल जाएगा, राइट। तो यही तरीका है गाइज, इसमें कुछ नहीं करना है, ओनली आपको 10 से 15 क्वेश्चंस आपको एसएससी जो ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम है गाइज, उसमें सॉल्व करना है, वहां से नोट्स बनाना है डेली 5 to 7 जो ग्रामर का रूल है, और आपको द हिंदू का 2 आर्टिकल पढ़ना है, वहां से आपको 5, ओनली 5, ये बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेगा गाइज, इट इज वेरी सिंपल। बट जो 15 डेज के बाद जो आप में इंप्रूवमेंट होगा ना गाइज, इट वुड बी लाइक समथिंग, राइट। तो यही था गाइज, अकॉर्डिंग टू अस दिस इज द प्रूवन स्ट्रेटजी फॉर इंग्लिश, बिकॉज वी कैन रिकमेंड यू सो मेनी बुक्स इन द मार्केट, बट यू डोंट हैव टाइम, एंड इवन यू हैव टाइम यू कैन नॉट रीड, बिकॉज अब वो आदतें आपकी छूट गई होंगी। सो दिस इज द बेटर। And guys, here we can say you that if you are interested in study material and test series, आप परचेज कर सकते हो। हम लोगों ने सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स इन डीआरडीओ और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स इन जीएसआई दोनों के लिए टेस्ट सीरीज प्लस स्टडी मटेरियल निकाला है, बहुत ही मिनिमल प्राइस पे, कॉस्ट पे आपको मिल जाएगा। इफ यू आर इंटरेस्टेड, यू कैन इस नंबर पे आप 6385803376 पे इधर यू कैन कॉल और व्हाट्सएप, आपको सारा डिटेल्स मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड फॉर सच वैल्यूएबल वीडियो गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।